इस्लाम मॉडर्निटी के खिलाफ नहीं है, एट द सेम टाइम इस्लाम मॉडर्निटी को पूरी तरह एक्सेप्ट भी नहीं करता है। We have got our own standards and parameters for accepting or rejecting something. We don't go by what God says. For example, I will give you something which you all can Google and cross-check right now. About 6 years back, there was a research published from USA. It says a person who has a glass of wine daily, his heart will be healthy. सब फार्मेसी के बच्चे बैठे हैं, जैसे अल्कोहल रोज ग्रुप आपको ज्यादा पढ़ते हैं, बोलते हैं अल्कोहल ग्रुप को कंज्यूम करने से हार्ट बीट बहुत अच्छी होती है। दिस वाज पब्लिश्ड इन अ जर्नल। जितने दारू पीने वाले थे, they had excuse to drink दारू। देखिए साहब, आप मुसलमान और इस्लाम कहता है दारू नहीं पीना चाहिए, आज तो साइंस कह रही है कि दारू पीने से दिल बड़ा अच्छा होता है। Now after 3 years it was found out that the big pharmaceutical company which was producing wine, they gave money to this research scholar to publish this research, and that also came in newspaper। शराब बनाने वाली कंपनी ने इस साइंसदान को पैसे दिए थे कि आप इस गलत रिपोर्ट को पब्लिश कीजिए, एंड दिस रिपोर्ट आल्सो केम इन द न्यूज़पेपर। कहने का मतलब क्या है, यंग जनरेशन इज कंफ्यूज्ड। What do we accept, Islam or modernity? And some of them say, is Islam compatible with modernity? Do we need to reform, reinterpret Islam, or do we need to reject modernity? ये दो पे मेरी गुफ्तगू रहेगी। सबसे पहले लफ्ज, what do we mean by Islam? सबको मालूम है what do we mean by Islam? What exactly do we mean by modernity? मॉडर्निटी से हमारा माने क्या है? एंड्रॉइड फोन होना, व्हाट्सएप इस्तेमाल करना, फेसबुक इस्तेमाल करना, these are all effects of modernity. What exactly is modernity in social science? Modernity is a subject of social science. एक समाज शास्त्र का एक विषय है। अगर शुद्ध हिंदी में उच्चारण करूं तो what exactly do we mean by modernity? मॉडर्निटी से हमारा माने क्या है? सोशल साइंस में मॉडर्निटी कहते हैं वो वक्त जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद आया। ठीक है, सनती इनकलाब, अगर उर्दू में कहें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को, सनती इनकलाब के बाद वो जो एक तारीख का दौर आया जिसमें लोगों को हर चीज पर सवाल करने के लिए उकसाया गया। This is one of the hallmarks of modernity. You will not accept anything unless it can be proved scientifically. One of the hallmarks of modernity. जब तक आप किसी चीज को लेबोरेटरी में प्रूव नहीं करेंगे, we will not accept it. That is why आज तक theory of evolution, Charles Darwin, it is still called a theory and not a law. Newton's law is called law and theory of evolution is called theory because law is something which can be repeatedly proved in an experimental setup and theory is something which has not been proved. Law और theory में बुनियादी फर्क। वो बोलते नहीं, ये एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद एक चीज आई, हर चीज को आपको प्रूव करके दिखाना। If you believe in the existence of God, you have to prove it. If you have to believe in the existence of angels, you need to prove it. ये सारे दौर आए, इसके क्या इफेक्ट हुए मुस्लिम समाज पर, मुस्लिम सोशल साइंटिस्ट पर, मुस्लिम स्कॉलर्स पर, अक्रॉस द वर्ल्ड हम देखेंगे, विद मेन फोकस ऑन इंडिया, जहां हम रहते हैं। हम इजिप्ट में क्या असर हुआ, लीबिया में क्या असर हुआ, वहां पर भी देखेंगे, लेकिन हमारा प्राइमरी एम इंडियन मुस्लिम्स पे होगा क्योंकि हमारा वतन है। So this is what modernity is. It is a phase in history, a term which is used in social science, in which people are encouraged to ask questions, and the effect of it is industrialization, technological development, a new concept of bureaucracy, a new concept of economy. हुआ क्या? We will go back to history क्योंकि बिना हिस्ट्री से पढ़े हम मॉडर्निटी में आ नहीं सकते। When Ottoman Empire was ruling nearly half of the world, and then due to different reasons, we will not go into it, it suddenly started becoming weak. And Turkey was called, the Ottoman Empire was called
द सिक ओल्ड मैन ऑफ यूरोप। अगर तारीख पढ़ी, तुर्की इतना ऑटोमन एम्पायर इतना कमजोर हो गया, उसको कहा जाने लगा ये यूरोप का बूढ़ा बीमार शख्स है, यानी वो मुल्क एकदम खराब हो गया। इस जमाने में यूरोप वाले साइंस का इस्तेमाल करके बिल्कुल आगे चले गए। इस्लाम, मुसलमानों का वकार नीचे हो रहा है और यूरोप के लोग ऊपर जा रहे हैं। दिस इज इन लेट 16th सेंचुरी। अगर आप उससे भी पहले जाएंगे, मेडिवल एरा अराउंड 800, उस समय उल्टा था। उस समय उल्टा था, इस्लाम उरूज पे था एंड यूरोप वाज इनटू डार्क एजेस। आई एम श्योर यू ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट रेनेसां। 9th तक तो सबने हिस्ट्री पढ़ी होगी ना, रेनेसां। उर्दू में क्या कहते हैं, कोई बच्चा है उर्दू जबान का? निशाते सानिया। निशाते सानिया। हिंदी में? हाँ सही बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए। पुनर्जागरण, ठीक है। हिंदी में पुनर्जागरण, उर्दू में निशाते सानिया और इंग्लिश में रेनेसां। ये यूरोप में जो रेनेसां आया, व्हाट एग्जैक्टली इज रेनेसां? यूरोप के लोग पीछे थे। वर्ल्ड में जो सबसे पहले कागज की फैक्ट्री बनी, इट वाज इन बगदाद, इन बगदाद। और अमेरिका में सबसे पहले कागज की फैक्ट्री बनी 1540 में। यू कैन इमेजिन कितना आगे था उस समय अरब वर्ल्ड। इट इज ऑल रिकॉर्डिंग, यू कैन गूगल एवरीथिंग। इट इज रिटन बाय नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स एंड साइंटिस्ट। सेंट, खुशबू, मैप, एवरीथिंग, साइंस, ग्लोब, वर्ल्ड मैप, एवरीथिंग वाज इन्वेंटेड इन इराक। इसका रीजन है बिकॉज उस जमाने में मुस्लिम्स नॉलेज जो है वो नॉन मुस्लिम से भी ले रहे थे। नॉलेज के लिए इस्लाम ने ये नहीं बोला है कि यू नीड टू टेक नॉलेज ओनली फ्रॉम मुस्लिम्स। व्हाट इज द टीचिंग इन सुनन तिर्मिज़ी? हसन हदीस, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, wisdom is the lost property of a believer. He should get it from wherever he can. हिकमत मोमिन का खोया हुआ खजाना है, उसको जहां से मिले ले लेना चाहिए। मधुमक्खी की तरह। मधुमक्खी बबूल के पेड़ पर भी बैठेगी, वो कांटा नहीं लेगी, वहां से शहद ले लेगी। तो जब तक मुस्लिम्स में ये एटीट्यूड था कि हम नॉलेज किसी से भी लेंगे, वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, अगर वो नॉलेज है वी विल रेस्पेक्ट हिम बिकॉज ऑफ नॉलेज, और हम उससे नॉलेज लेंगे। उस समय तक यूरोप से बहुत आगे मुस्लिम वर्ल्ड था। उसके बाद जो क्रूसेड हुआ, धर्म युद्ध हुआ, मजहबी जंग, जिसको सलीबी जंग कहते हैं, तो यूरोप का और अरब वर्ल्ड का फर्स्ट कांटेक्ट हुआ। यूरोप के लोगों ने देखा कि अरब के लोग इतना आगे हैं और हमारे यहाँ इतना पीछे है, हमारे यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं। तो उन्होंने उसकी वजह ढूंढने की कोशिश की। तो इन्होंने देखा इस्लाम में रिलीजन, मजहब और पॉलिटिक्स जुदा नहीं। जो उनका रूलर होता है, जो उनका मजहबी पेशवा होता है, जो उनका मौलाना होता है, आलिम होता है, वो कुछ ऐसी बात नहीं कहता जो लोगों के अक्लों से खराब हो। चर्च में क्या था? Why was Galileo imprisoned? गैलीलियो को जेल क्यों दिया गया? गैलीलियो ने कहा सन एंड अर्थ रोटेट्स अराउंड सन। चर्च का कॉन्सेप्ट क्या था? ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम was born on earth, so earth has to be the center of universe, so all the celestial bodies need to rotate around the earth. If you say earth is rotating around the sun, you are showing disrespect to Isa bin Maryam alayhi salam, so they pass a judgment of death penalty on him. तो चर्च जो था उसने ऐसे कानून बनाए थे जिसकी वजह से वहां साइंस को फरोग नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने कहा नहीं, a woman was not allowed to speak in church. We'll come to this issue, okay? अरे बाबा, in your religion women are not allowed to come in mosque. You're talking about speaking. We'll come to that issue later इंशाअल्लाह ताला। तो इस तरह के कुछ ऐसे वजूहात थे। जब यूरोप के लोग कांटेक्ट में आए तो देखा हमारे यहाँ अगर तरक्की करनी है तो जो सबसे पहली चीज है कि ये जो पादरी लोग हैं, उन पादरी लोगों को साइंस से और पॉलिटिक्स से दूर करना है। पादरी का काम सिर्फ चर्च को चलाना रहेगा, गिरजाघर को चलाना रहेगा, वो आम जिंदगी में उसकी कोई राय नहीं मानी जाए। ठीक, इसको ज़हन में आपने रखा। अब आइए 18th सेंचुरी में
जब हिंदुस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, ये सारे कंट्री में ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉलोनाइजेशन शुरू हुआ, राइट? अंग्रेजों ने आकर यहां पर अपनी हुकूमत कायम की। अब मुसलमानों की वो हालत हो गई, इस्लाम को मानने वालों की वो हालत हो गई जो 800 साल पहले यूरोप वालों की थी। तो अब मुसलमान बड़ा परेशान हुआ, वो सोचा कि हमारी ये हालत क्यों हो गई? हम एक जमाने में दुनिया को सिखाते थे, आज हमारी ये हालत क्यों हो गई? तो उसने वही तरीका अपनाया जो यूरोप के लोगों ने अपनाया था। क्या तरीका? मजहब के लोगों में गलती ढूंढना। यूरोप के लोगों ने यही तरीका अपनाया था ना कि कहा पादरियों ने, पोप ने हमारे मजहब को पीछे कर दिया, तो इन्होंने ये कहा, कुछ लोगों ने, नो, इस्लाम नीड्स रिफॉर्म, इस्लाम नीड्स इंटरप्रिटेशन, द थियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इस्लाम नीड्स टू बी इंटरप्रेटेड इन सच अ वे दैट इट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉडर्न साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। एक मिसाल दूंगा, फिर आपको पता लगेगा कि हमने मॉडर्निटी के साथ इस्लाम को क्यों लिया, किसी और चीज को क्यों नहीं लिया। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने लिया? चार्ल्स डार्विन, 1885। उसने कहा इंसान बंदर, चिंपांजी, गोरिल्ला से पैदा हुआ है। दिस कॉन्सेप्ट थ्योरी इज अगेंस्ट बिब्लिकल टीचिंग्स एज वेल एज कुरानिक टीचिंग्स। सही है ना? ये बाइबल की तालीम के खिलाफ भी है और कुरान की तालीम के खिलाफ भी है। हमारे यहाँ लगा खलक़नल इंसान फी आसिन तक़वीम। खैर बात जा रही ओसामा साहब